Hello friends, today I am here with the topic that is nature and significance of management chapter 1, in which we will study the topic features or characteristics of management. Friends, we in a previous video we have discussed about the meaning of management, which was art of getting things done through others. Art of getting done through others. Now here, who are others? Others means the people who are working in the organization. Then we have discussed two important topics, that was effectiveness and efficiency. For the detail, please look to the previous video. Now in this topic we will study about features and characteristics of management. Now there are 8 types of characteristics of management. First one is goal-oriented process. Management is pervasive. Third, multi-dimensional management. Management of operation. Management is a continuous process. Management is a group activity. Management is a dynamic function, and management is an intangible force. Now let's discuss one by one. What is management is a goal oriented process. Goal oriented process means management हम इसलिए करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो जाए. ठीक है. सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स is management is goal oriented process. Management always aims at achieving the organizational objectives. जो management किया जाता है, management क्यों किया जाता है? Management always aims at achieving the organizational goal. The functions and activities of manager lead to the achievement of organizational objectives. If management is not there in the organization, suppose management नहीं है, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट के लोग जो हैं कोई दूसरा काम कर रहे हैं जो उनको दिया नहीं गया या उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, देन हाउ दे कैन अचीव द गोल. तो मैनेजमेंट जो होता है वो मैनेजमेंट पर्टिकुलरली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए. मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाए, हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए. ठीक है. तो दैट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नाउ द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज परवेजिव. Now what do you mean by the term pervasive? Pervasive means होता है कि all types of organization में वो जो है मैनेजमेंट है वो होता है, मैनेजमेंट किया जाता है. लाइकवाइज जैसे ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्मॉल है चाहे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, सब में जो मैनेजमेंट है वो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. परवेजिव, परवेजिव मतलब ऑल टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें ये यूज़ होता है. ठीक है. ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट यूज़ होता है. तो फर्स्ट वन वाज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर गोल अचीव हो पाए. विदाउट मैनेजमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट अचीव अ गोल. Second one is management is pervasive. Management pervasive means होता है whether it is a small organization or whether it is a large organization, non-profit or profit organization, in all the types of organization, in all the departments, at all levels. ठीक है. We require management. Now the next one is management is required in all organization, whether big or small, manufacturing or service organization, profit or non-profit organization. Likewise, I have told you that इन मैनेजमेंट जो होता है वो चाहे बिग और स्मॉल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. नाउ द थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल? मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि मल्टीटास्किंग, मल्टी काम करता है. ठीक है. मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटीज़. मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर एक वर्ड नहीं है. मैनेजमेंट नॉट अ सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड 3 मेन एक्टिविटीज़. व्हाट? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. नाउ मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर वर्क को भी मैनेज करना होना चाहिए, पीपल को भी मैनेज करना होना चाहिए, एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑल्सो शुड बी देयर. ठीक है. कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क पहले हम पढ़ते हैं. तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, वर्क का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? वर्क का मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है. आपको जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो पर्टिकुलर काम दिया गया है, वर्क दिया गया है, दैट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर मैनर. ठीक है. ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल्स. मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम्स एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश. ठीक है. पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो होता है या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन होता है, सबका एक मैनेजमेंट होता है.
ठीक है, एक मैनेजमेंट ये काम करने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क टू बी अकम्पलिश्ड इन अ स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशन। जो टारगेट होता है स्कूल में वो क्या होता है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन। हॉस्पिटल में क्या होता है? ट्रीट पेशेंट, सॉरी स्पेलिंग होगी ट्रीट patient. In industry, to manufacture some products, management makes sure that work is accomplished effectively and efficiently, मतलब within the time और within the minimum cost, with the minimum cost जो है हमारा काम होना चाहिए। दैट इज़ वॉट मैनेजमेंट ऑफ वर्क इज़। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है? वर्क का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्कूल है या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, उसका एक अलग से हमारा जो है एजुकेशन और वो होना चाहिए। So management makes sure that work is accomplished effectively and efficiently. Now management of people. What do you mean by management of people? वर्क का तो मैनेजमेंट हमने कर लिया कि जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिस चीज़ के लिए बना हुआ है वो ही काम करेगा, ठीक है ना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल जो है ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होता है। पीपल मीन्स जो ह्यूमन रिसोर्स है दैट आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क अकम्प्लिश थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इरेलीवेंट। मीन्स उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको तो इफेक्टिव बनाना है और जो उनकी वीकनेस है उनको हमको इग्नोर करना है। इग्नोर मीन्स हम उनको कम कर सकते हैं। मैनेजिंग पीपल हैव 2 डायमेंशंस। नाउ मैनेजिंग जो पीपल है हम वो 2 डायमेंशंस में कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स। ऐसा नहीं है कि उनको काम दे दिया तो उसकी तरफ देखना नहीं है, बस तुमको तो पर्टिकुलर काम करना है, ठीक है, अब चाहे तुम कैसे भी करो, मर के करो, ठीक है, चाहे मतलब टॉर्चर नहीं करना है, नॉट टू टॉर्चर द एम्प्लॉयज़, ठीक है, टॉर्चर नहीं करना है। उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स होती है उनको ध्यान में रख के जो है एम्प्लॉयज़ का ध्यान रख के तब काम करवाना है। देन टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल काम कर रहे हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनका पूरा ध्यान रखना है। दैट इज़ वॉट मैनेजमेंट ऑफ पीपल। क्योंकि अगर हम एम्प्लॉयज़ का पूरा ध्यान रखेंगे तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में पूरा हमारा साथ देंगे। देन वॉट इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज़। Operation refers to top activities of production cycle such as buying inputs, converting them into semi-finished goods and finished goods. ठीक है, जो हमारा ऑपरेशन मीन्स हम क्या काम कर रहे हैं, प्रोसेसिंग जो चल रही है हमारी, दैट इज प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट्स, कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स। नाउ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट्स ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट और वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, दैट इज डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड हु हैज़ टू डू इट। मीन्स मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है जिसमें कि डिसाइड करते हैं कि व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन, कि हमको कौन सा काम करना है। लाइकवाइज हमको एक क्रीम जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, एक क्रीम का प्रोडक्ट बनाना है जिसे हमें प्रोड्यूस करना है। नाउ हाउ इट हैज़ टू बी डन, कैसे होगा ये, ठीक है, एक से कहा जाएगा कि आप एक जो है मटीरियल लाइए, ठीक है, उसके लिए बाकी मटेरियल कैसा लाना चाहिए जो एक मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं उनसे मैच कर पाए, ठीक है। देन हु विल डू इट, कौन इसको करेगा, ठीक है, कौन इसमें जो स्पेशलिस्ट है या एक्सपर्ट है जो इस चीज़ को कर पाएगा, ठीक है। हम ऐसा प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि मार्केट में जो हमारे जो कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वो क्या कर सके, बीटअप कर सके। नाउ फोर्थ वन इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टारगेट आपका अचीव हो गया देन यू हैव स्टॉप्ड मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट नहीं करना है, अब हमारा काम हो चुका है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये हमेशा चलता रहेगा। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूअसली। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि आप जो है 5th क्लास में आ गए या 6th क्लास में आ गए या 12th क्लास में हैं ये 11th क्लास में है, ठीक है, उसके बाद हम 12th क्लास में मैनेजमेंट करना बंद कर देंगे, ठीक है, या 12th क्लास के बाद हम जो कॉलेज करेंगे, बीकॉम करेंगे, व्हाटएवर, बीएससी करेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन करेंगे, उसमें हम हमारा मैनेजमेंट बंद कर देंगे, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। लाइफ में मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ठीक है, मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर विदाउट मैनेजमेंट आप चलेंगे तो ना तो आपका जो टारगेट है वो अचीव होगा, ना गोल अचीव होगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। नाउ दीज आर व्हाट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच वी विल स्टडी लेटर। नाउ द फिफ्थ वन इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी।
So management always refers to the group of people involved in managerial activity. Each individual performs his or her role, his or her status and department. Then only management functions can be executed. ठीक है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. अगर ग्रुप में सब लोग काम करेंगे देन ओनली वी कैन अचीव आवर गोल्स, देन ओनली अ इफेक्टिव मैनेजमेंट कैन टेक प्लेस. ठीक है, अगर एक ग्रुप में हम होके काम चलेंगे, एक टीम वर्क से काम करेंगे, तो ही जो ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट है या मैनेजमेंट जो एक पॉलिसी बनाई गई है वो सक्सेसफुल हो सकती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करे कि ये तो तेरा काम है मेरा काम नहीं है. ठीक है, इट इज़ योर वर्क, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम करो. ऐसे मैनेजमेंट जो है नहीं हो पाएगा, ये सक्सेस नहीं है, दैट इज़ अ फेलियर. और ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसे लड़ाई झगड़े हुए तो मैनेजमेंट फेलियर हो जाएगा एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट अचीव देयर गोल्स. तो मैनेजमेंट हमेशा एक क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है. देन सिक्स्थ वन इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. डायनेमिक मीन्स क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं, जिसमें कि मैनेजमेंट जो है हमेशा चेंजेबल रहता है. ठीक है, जैसे कि आपने सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने मैनेजमेंट को जो है चेंज कर सकते हो. मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, अपने मैनेजमेंट को आपने चेंज किया, लाइकवाइज आपने मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको लगा कि अभी यार काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है, अब इसको चेंज करना चाहिए या इसका कवर चेंज करना चाहिए, ठीक है, या इसकी जो क्वालिटी में थोड़ा सा हमको बढ़ाना चाहिए. तो आपने अपना मैनेजमेंट और अपना जो काम है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लिया. ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एक फेयर एंड लवली क्रीम बन रही है तो फेयर एंड लवली क्रीम ही बन रही है. ठीक है, उसके लिए आप दूसरी क्रीम भी आने लग गई है. ठीक है, एक आयुर्वेदिक क्रीम भी आ गई है, ये सनस्क्रीन लोशन आते हैं. तो दैट इज़ वॉट कि मैनेजमेंट हम किसी की चीज़ के लिए कर रहे हैं तो मैनेजमेंट जो है वो चेंजेस हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. As changes taken place in external environment, some are implemented in organization to survive in the competitive world. अब ये क्या कहना चाहता है कि मैनेजमेंट एक स्ट्रिक्ट नहीं है. ठीक है, एक चीज़ के लिए कि ये नहीं कि भाई मैनेजमेंट मुझे करना ही है तो बस इसके लिए ही करना है. ठीक है, मैनेजमेंट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मीन्स एक्सटर्नल मीन्स मार्केट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है मार्केट में जो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हमको सर्वाइव करना है तो हमें अपना मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग जो है वो करना पड़ेगा. दैट इज़ वॉट मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. ठीक है, नाउ मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल फोर्स? हम इसको टच नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते, बट हम इसको महसूस कर सकते हैं. और महसूस कब होगा? ठीक है, महसूस हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल पर्टिकुलर एक लाइन पे चल रहा है, ठीक है, विद इन द टारगेट्स, अगर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं सब कुछ और हमारे टारगेट्स भी अचीव हो रहे हैं, तो ये महसूस हो रहा है कि हमारा मैनेजमेंट जो पॉलिसी हमारी चलाई है वो मैनेजमेंट दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल. और अगर अकॉर्डिंग टू दैट काम नहीं हो रहा है तो हम क्या समझ रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, वो ऑर्डरलीनेस या कोऑर्डिनेशन में नहीं है. तो मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट. तो मैंने यही समझाया आपको कि अगर हमको मैनेजमेंट जो है हम देख नहीं सकते बट हम फील कर सकते हैं. अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक राइट पाथ पे जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कि हमारी मैनेजमेंट या जो प्रोसीजर है वो सही फॉलो हो रहा है. ठीक है, तो दीज आर वॉट मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल, दीज आर द features of management. Now let's start some MCQs and case studies on this. ठीक है, first of all is human resource are organization greatest assets. ठीक है, despite all development in technology, getting work done from people is still a major task of manager. Identify the dimension of management being described above. ठीक है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, अब ह्यूमन रिसोर्स का नाम आते ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए एकदम दिमाग में कि दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल. किसके बारे में बात कर रहे हैं? पीपल के बारे में. तो यही एक बस हिंट है आपके लिए. ठीक है, यही एक हिंट है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है दैट आर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट्स. अगर विदाउट पीपल या विदाउट ह्यूमन रिसोर्स हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट या मैनेजमेंट अचीव कर नहीं सकते. जब पीपल ही नहीं होंगे तो मैनेजमेंट किस पे चलाओगे? ठीक है, डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क ऑफ मैनेजर. नाउ इसमें जो आइडेंटिफाई करना है आपको कौन सा डायमेंशन है मैनेजमेंट का, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ people, not the management of work, not management of operation, but it is the management of people. और ये हमने कैसे पहचाना? with the word human resource.
नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क्स बाय कीपिंग एन एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो बनाया जाता है या मैनेजमेंट जो किया जाता है वो हमेशा जो टारगेट होता है ऑर्गेनाइजेशन को उसको ध्यान में रखकर किया जाता है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजमेंट्स आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द एंड रिजल्ट। इट इज़ रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है, हमने सबसे पहला जो फीचर पढ़ा था दैट वाज मैनेजमेंट इज़ अ व्हाट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका दे ऑप्शंस आर, look at the options, management is multidimensional, management is a continuous process, मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल एंड मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यहाँ पर भी एक हिंट दिया गया है आपको। क्या हिंट दिया गया है कि एंड रिजल्ट्स, एम्स एट एंड रिजल्ट्स, एंड रिजल्ट्स मीन्स गोल। ठीक है, तो जो इसमें जो हमारे फीचर ऑफ मैनेजमेंट होगा दैट विल बी द आंसर इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड process. Now the third one is, are planning, organizing, staffing, directing and controlling aligned in organization? These are what functions of management. An organization such as school, club, restaurants, hospitals, etc. If yes, which characteristics of management does it signifies? Explain that characteristics. अब इसमें क्या है कि जो भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है या वॉट एवर फंक्शन है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, स्कूल हो, क्लब हो, रेस्टोरेंट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, सब में ही अप्लाई होता है। तो व्हाट विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डज इट सिग्निफाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा येस, द कैरेक्टरिस्टिक विच सिग्निफाइज द मैनेजमेंट इज परवेजिव। परवेजिव मीन्स होता है कि आप कहीं पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस मैनेजमेंट को जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, then the task of management is to make people work toward achieving the organizational goals by making their strengths effective and their weakness irrelevant. Identify the dimension of management. अब इसमें जो है make people towards जो है हमने पढ़ा था कि लोगों को, मैनेजमेंट का टास्क ऐसा होना चाहिए कि जो लोगों की स्ट्रेंथ है उसको हमको आगे लाना है और जो इनकी वीकनेसेस हैं उनको हमको सबसे कम करना है। दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज़ द आंसर। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डोमिनोज पिज़्ज़ा कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैराइटीज़ ऑफ पिज़्ज़ा इन इट्स मीनू। ठीक है, डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है, ठीक है, इंट्रोड्यूस एक नई वैराइटीज़, कभी इसमें मोज़रेला चीज़ आ जाती है, ठीक है, कभी इसमें कुछ नया सब जो है वो चीज़ें इसमें मिला दिया जाता है। तो मतलब उसमें क्या है, वो चेंजेस करते रहते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आर हाईलाइटेड इन दिस? एक्सप्लेन एनी अदर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है? डायनामिक। डायनामिक मैंने अभी पढ़ाया था आपको। डायनेमिक मतलब क्या होता है? चेंजेस आना अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपने मैनेजमेंट को चेंज किया है दैट इज़ व्हाट मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक। और इसमें नेक्स्ट क्या पूछा है कि एक्सप्लेन एनी अदर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको याद है वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ today in this video, in this topic, we have studied about the features of management. That is, features of management is goal oriented process, it is pervasive, multidimensional, continuous process, group activity, dynamic function और intangible force. intangible force मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि management is there or not. ठीक है, then we have done some question answers, that is MCQs. I hope you have liked the video. Please like and subscribe my channel, that is Commerce with Tejeshwari, and do comment also whether, कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, चाहे आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, वॉट एवर द जो भी आपकी मेरे को कमी लग रही है इसमें वो आप मुझे बताइए ताकि मैं उसको ओवरकम करके एक नया अच्छे से वीडियो बना सकूँ। सो टेक केयर, बाय बाय।